some portion was left. I would like to continue with that portion. Okay. Yes, ma'am. See this figure. Okay, different sulci as well as this gyri. I told you about the name of different sulci and gyri, as well as the cavity which is present in each cerebral hemisphere is known as lateral ventricle. Okay, this lateral ventricle is an elongated cavity lined by ependyma. Okay, it has anterior and posterior extension. Okay, known as cornu. नहीं दिख रहा slide. Okay, okay. Just wait. Now it is visible? Yes, ma'am. Okay. You can see this medial section of the brain. Is it visible to you? No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिख रहा आप लोग को? No. No, ma'am. No, ma'am. Just wait. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the last class, different sulci and gyri, the name of different gyri and sulci, I told you about that. Then about the lateral, you can see this is the lateral ventricle. ठीक है, elongated cavity having anterior and posterior extension. ठीक है, तो ये तो cavity अपने को दिख रही है, लेकिन अंदर की तरफ दोनों तरफ उसमें extension होगा, known as cornu or horn of the lateral ventricles. Means each lateral ventricle is having apart from the large cavity, some extension cranially or rostrally and caudally, known as cornu of the lateral ventricles. Okay, तो मैंने आपको roof बताई थी of the lateral ventricle, how it is formed. It is formed by the anybody roof of the lateral ventricle. Corpus callosum. Okay, roof and lateral walls are formed by the corpus callosum. ठीक है, then floor by the क्या क्या बताया था floor में? Caudate nucleus, choroid plexus, hippocampus. thalamus, hippocampus, and fornix. Okay, these structures they form the this floor of the lateral ventricles. Okay, then lateral side हो गई, roof हो गई, then जो medial wall, floor भी हो गया, medial wall जो होती है, you can see this is a thin septum. ठीक है, बिल्कुल plate like structure होता है जो आप देख रहे हो. This septum is the septum lucidum or septum pellucidum. ठीक है, this thin sheet it separates the two lateral ventricles. ये वाला lateral ventricle कौन सा है? राइट वाला है ये. ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? लेफ्ट. तो this septum pellucidum or septum lucidum it forms a partition between two lateral ventricles. ठीक है, तो medial wall of the lateral ventricle is being formed by the septum lucidum. ओके, तो मीडियल बाउंड्री किससे बन रही है? मीडियल पार्टीशन किससे बन रहा है? बाय द प्रेजेंस ऑफ ए थिन शीट दैट इज नोन एज सेप्टम लूसिडम. ठीक है, तो एक्सेप्ट स्मॉल फोरामेन इज प्रेजेंट, एक्चुअली दैट फोरामेन इज नॉट विजिबल ग्रॉसली. ठीक है, मींस दिस इज वन लैटरल वेंट्रिकल.
राइट वन, इसके अपोजिट में लेफ्ट साइड में भी होगा, ठीक है, दिस इज हाफ पोर्शन, तो ये राइट पोर्शन है तो अपोजिट टू दिस देयर इज अ लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, and these two ventricles they are separated by a thin sheet that is septum lucidum, but there is small foramen actually that is not visible grossly, that is foramen of Monro, ठीक है, तो foramen of Monro actually दोनों lateral ventricle के बीच में होगा and it opens, this is the third ventricle, ये जो दिख रहा है third ventricle का portion है, तो वहां पे जाके small foramen से open होगा, because on lateral side two lateral ventricles are there, third ventricle is single, thus we can tell it as a Y-shaped structure, ठीक है, Y-shape और V-shape foramen of Monro which connects the two lateral ventricle to the third ventricle, clear हो गया, तो foramen Monro किसको किसको कनेक्ट करता है, two lateral ventricles to third ventricle, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एरिया आ रहा है दिस इज थर्ड ventricle, small perforation, ठीक है, कॉमन परफोरेशन फॉर बोथ द लेटरल वेंट्रिकल्स फॉर्मिंग अ वी और वाई शेप स्ट्रक्चर परफोरेशन, ठीक है, तो दैट इज नोन एज, और पैसेज कह सकते वेरी टाइनी, बिल्कुल हमको दिखाई नहीं देगा, तो दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोनरो। तो क्वेश्चन में कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में, द लेटरल वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल बाय द, तो आंसर क्या आएगा, बाय फोरामेन ऑफ मोनरो, ओके। तो डिफरेंट वॉल्स हो गई है ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, रूफ किससे बन रहा है, फ्लोर किससे बन रहा है, मिडिल वॉल किससे बन रही है, एंड देयर इज अ परफोरेशन और पैसेज व्हिच कनेक्ट्स द लेटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड वेंट्रिकल, बिकॉज सीएसएफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है, secreted in the lateral ventricle and lateral ventricles are lined by the ependymal layer, ठीक है। So from here the CSF it goes into the third ventricle by the presence of the passage, and that passage or that foramen is known as foramen of Monro. Is it clear about the lateral ventricles? Any doubt? lateral ventricle में कोई डाउट है भी आप लोग को? Am I audible? Yes, ma'am. आप लोग को lateral ventricle में कोई परेशानी है? क्लियर है कि नहीं, ये कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तुम लोग ऐसे बैठे हो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा जैसे। Am I audible? Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, उतना क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर नहीं हो पाया लेटरल वेंट्रिकल? थोड़ा तो ये कौन बोल रहा है इसमें? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता, अब मैं आप ठीक है। रूफ ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल इज बीइंग फॉर्म बाय, कौन बनाता है रूफ? हाउ वी डिफाइन द दिस लेटरल वेंट्रिकल्स? व्हाट इज लेटरल वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल्स? Lateral ventricle is a group present below the corpus callosum with hypothalamus region. सिंपल बोलेंगे लेटरल वेंट्रिकल्स आर द कैविटीज और द कैविटी प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे? कैविटी प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज नोन एज लेटरल वेंट्रिकल्स, लाइनिंग एपिथेलियम इज एपेंडाइमा। ये हो गया क्लियर, डेफिनेशन हो गई। फिर उसका फॉर्मेशन बताएंगे, फॉर्मेशन रूफ कैसे बन रही है, फ्लोर कैसे बन रही है, ठीक है, मिडिल वॉल कैसे बन रही है, रूफ एंड लेटरल वॉल से कॉर्पस कैलोसम से ही बनेगी। क्लियर नितिन, इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. उसको आप फ्लोर में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, नेम दो स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर और द स्ट्रक्चर्स व्हिच फॉर्म द फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, नेम देम। फ्लोर का नहीं पता है, रूफ का पता। फ्लोर का क्यों नहीं पता? डायग्राम नहीं दिख रहा। हाँ, नहीं दिख रहा। नितिन बोल रहे हो? हेलो, स्लाइड स्लाइड नहीं दिख रही? हाँ, अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, अभी तो आप लोग को देख रही ना, इसलिए मेरे बताओ फ्लोर कैसे बन रही, बिना देखे बताओ नितिन। कल पढ़ाया था ना फ्लोर। कुछ पार्ट होते हैं, नेम याद नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है नितिन। हाइंड ब्रेन से नीचे बनता, बट नेम याद नहीं आ रहा कौन से पार्ट। हाइंड ब्रेन से कहाँ से बन जाएगा? हाइंड ब्रेन कहाँ आ गया इधर?
नितिन फ्लोर हाइंड ब्रेन यहाँ पे कैसे आ गया? वहां तो फोर्थ वेंट्रिकल रहेगा बेटा। अभी तो अपन लेटरल फोर ब्रेन में ही है ना, टीलेंसिफ्लॉन में ही है। फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल अभी बताया था किसी स्टूडेंट ने, पूरे नाम लिए थे। कौन कौन बनाता है फ्लोर? आपने पढ़ा था कल? मैंने पढ़ाया था तो सच बताओ, बुक खोल के देखा था कि नहीं देखा था? मैम बस ऑल्फैक्टिव बल्ब पढ़ा है और एक दो टॉपिक और पढ़ा, ये लैक्टल वेंट्रिकल नहीं पढ़ा है पूरा। क्यों नहीं पढ़ा? फिर कैसे समझ में आएगा? जब एक बार मैंने बता दिया तो उसको रटना तो पड़ेगा ना आपको। यस ठीक है, मैम। फ्लोर किस किस से बना कल ही बताया मैंने, आज एक स्टूडेंट ने बता आंसर भी कर दिया है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच फॉर्म द दिस फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। एनीबॉडी कैन आंसर? Ma'am, caudate nucleus, choroid plexus, thalamus, hippocampus, and fornix. सुन लिया नितिन? यस मैम। These structures form the floor of the lateral ventricle, ये कल की क्लास में बताया था। ठीक है, देन मीडियल वॉल किससे बनेगी? गौतम, किसले गौतम? मीडियल वॉल ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, जल्दी बताओ अपने कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा। नहीं पता गौतम? बलवंत भट्ट। Yes, ma'am. Medial wall of the lateral ventricle is being formed by और Septum pellucidum. सेप्टम पेलुसिडम और सेप्टम लोसिडम। ठीक है, इतना क्लियर Yes, हो गया फॉर्मेशन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो सीएसएफ व्हिच इज सिक्रेटेड इन द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो इट गोज इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होता है? थोड़ा पोर्शन टेलेंसिफ्लॉन में होगा एंड मेजर पोर्शन जो कह सकते हैं अपन दैट इज इन द और पोस्टीरियर पोर्शन दैट सराउंड्स द डायंसेफ्लॉन। ठीक है, डायंसेफ्लॉन को पूरा सराउंड करेगा, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, फिर इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ हमने लेटरल वेंट्रिकल देखा था। ठीक है, देन स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द दिस each cerebral hemisphere or that is a part of the telencephalon known as corpus striatum। अच्छा, उसके पहले मैं थोड़ा फॉर्निक्स बता दूं आपको। कॉर्पस कैलोजम बता दिया था। कॉर्पस कैलोजम कैसा था? इट इज द मेड अप ऑफ वाइड बैंड, वाइट बैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जा सकती है, मतलब ये राइट वाला है से लेफ्ट में। ठीक है, देन फॉर्निक्स जो देख रहे हैं आप नीचे की तरफ ये जा रहा है, दिस इज द फॉर्निक्स, ये ऐसे जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली वी कैन से दिस इज फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स जो है इट इज कर्व्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कर्व्ड फाइब्रस बैंड, ये भी हालांकि कर्व था, थोड़ा कॉन्वेक्स था कॉर्पस कैलोजम। तो कॉर्पस कैलोजम में जो फाइबर्स आर ओरिएंटेड ट्रांसवर्सली। कैसे फाइबर्स थे? मीडियल और लैटरल को कनेक्ट कर रहे थे। बट कॉर्निक्स में जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, और वी कैन से एक्सॉन या फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, दे आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, मतलब लंबे इस तरीके से लंबाई में जाएंगे इन केस ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्निक्स स्ट्रक्चर। आप देखोगे पहले कॉर्पस कैलोजम के पार्ट बताए थे मैंने, रोस्ट्रम, जेन्यू। ठीक है, जेन्यू हो गया, रोस्ट्रम हो गया, देन ट्रंकस और स्प्लीनियम। ठीक है, तो स्प्लीनियम से कंटिन्यूएशन में देयर इज अ फॉर्निक्स। फॉर्निक्स कैसा है? स्प्लीनियम के कंटिन्यूएशन। देखो आपको यहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एक ही चीज आ रही है। तो दिस इज फॉर्निक्स विच इज कर्व्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? कर्व्ड फाइब्रस बैंड। फॉर्निक्स इज अ कर्व्ड फाइब्रस बैंड with the fibers are oriented longitudinally, whereas in case of corpus callosum fibers are transversely oriented, whereas in fornix the fibers are longitudinally oriented। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा फाइबर्स कॉर्पस कैलोजम से स्टार्ट होंगे, यहाँ से जाएंगे ये पूरा मेमोरी बॉडी, यहाँ ठीक है थैलेमस तक जाएंगे। तो दिस इज फॉर्निक्स। ठीक है, तो फॉर्निक्स आपको यहाँ पे केवल एक सिंगल बैंड दिखाई दे रहा है, बट एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी। Because the middle portion of the fornix is single, but anterior and posterior portion they are having branches। ठीक है, तो उसमें अपन इनको कह सकते हैं this cornu of the fornix। For that I will show you another structure regarding fornix। ये देख रहे पोजीशन देख लिया आपने फॉर्निक्स की? थैलेमस के नीचे से ऊपर से होते हुए नीचे तक जा रहा है। ठीक है, अप टू द मेमोरी बॉडी, यहाँ तक जाएगा।
that I दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द फॉर्निक्स। ठीक है, ये कैसा डायग्राम है? फॉर्निक्स का स्कीमेटिक डायग्राम है। आप देखोगे तो ये यहां से शुरू हो गया है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है क्रूरा कह सकते हैं, और ऑफ द फॉर्निक्स से दो पार्ट। अपन को एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, आधा पोर्शन दिख रहा था, बिकॉज वी आर व्यूइंग द दिस कट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये तो स्कीमेटिक है, 3D बनाया हुआ है उन्होंने कुछ उसमें। तो ये स्टार्ट होता है फॉर्निक्स यहाँ से। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द फॉर्निक्स। ठीक है, ऑल्दो इन द प्रीवियस डायग्राम यू आर एबल टू सी ओनली वन पोर्शन। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होंगे, दो अलग अलग पार्ट हैं, एक ये फॉर्निक्स के। ठीक है, दीज आर टू स्ट्रक्चर्स नोन एज कॉर्नू ऑफ द फॉर्निक्स। फिर बीच में क्या होगा? इनके बीच में कनेक्शन, अदर फाइबर्स दे कनेक्ट दी टू पार्ट्स ऑफ द फॉर्निक्स नोन एज कमिश्चर ऑफ द फॉर्निक्स। ठीक है, प्रीवियसली जहां से कॉर्पस कैलोसम से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके पिछले पार्ट से, तो देयर आर टू ब्रांचेस। ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ द फॉर्निक्स आर देयर एंड दीज आर नोन एज कॉर्नू ऑफ फॉर्निक्स। आपने यूट्रस में ही पढ़ा होगा कॉर्नू मींस हॉर्न। ठीक है, एनिमल के जो हॉर्न्स है अपन उसको क्या कह सकते हैं? कॉर्नू। ठीक है, एनिमल में हॉर्न देखे ना, कैटल में, बफेलो में, तो दीज हॉर्न्स दे आर नोन एज कॉर्नू। तो सिमिलरली दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कॉर्नू ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा ओरिएंटेशन डिफरेंट दिख रहा है फ्रॉम दैट डायग्राम। ठीक है, तो आप केवल अभी फॉर्निक्स का स्ट्रक्चर समझ लो। टू हॉर्न्स आर देयर, देन व्हेन they meet to each other, before that there is a band which connects to cornu known as commissure of fornix। कमिश्चर है जो कि इसको दोनों को जोड़ रहा है, और आगे जाके ये दोनों यूनाइट होते हैं। दोनों जो पार्ट हो गए ऑफ द फॉर्निक्स दे यूनाइट टू ईच अदर। इसको मत देखो, ये हिप्पोकैम्पस है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो दीज टू पार्ट्स दे यूनाइट टू फॉर्म द बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स। और आगे जाके ये क्या करेगा? आपने देखा था नीचे मेमिलरी बॉडी, यहाँ थैलेमस होना चाहिए, तो दे एंड हियर। ठीक है, अप टू द थैलेमस। आफ्टर कवरिंग और आफ्टर फॉर्मिंग द मेमिलरी बॉडी, द फाइबर्स दे एंड एट थैलेमस। तो पूरा थैलेमस को एनसर्कल कर रहा था। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट हो गए ऑफ द फॉर्निक्स? एनीबॉडी? बाकी पार्ट छोड़ दो। एम आई ऑडिबल? टू हॉर्न्स। टू हॉर्न्स हो गए। ठीक है, ये छोड़ देना, ये नहीं, यहां से शुरू करो। टू हॉर्न्स हो गए, देन कमिश्चर ऑफ द फॉर्निक्स दिख ही रहा है आपको। हाँ, फिर ये बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। बॉडी का मतलब है जब यहाँ पे यूनाइट हो गए, सिंगल स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये पीछे चला गया तो अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, नोन एज कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, ये आगे की तरफ जब जाए, पीछे से आगे जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स दैट मीट्स विद द मेमिलरी बॉडी, और दैट फॉर्म्स नॉट मीट, क्योंकि ये सब फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर्स। क्या है ये? फॉर्निक्स इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। नो ग्रे मैटर इज देयर, ओनली फाइबर्स आर देयर। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है अपन देखेंगे। हिप्पोकैम्पस से शुरू। ठीक है, हिप्पोकैम्पस भी अटैच है यहाँ से, कॉर्पस कैलोसम आपने वहां देखा था, उससे अटैच होते हुए ये ऊपर जाएगा। देन इट फॉर्म्स द मेमिलरी बॉडी एंड सम फाइबर्स दे मीट द थैलेमस। ठीक है, तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द फॉर्निक्स स्ट्रक्चर, जो आपको ये दिखा दे रही थी मैं। ऑल्दो दिस इज द एंटायरली डिफरेंट पिक्चर, बिकॉज आप ब्रेन में बहुत सारे आपको सेक्शन लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको चीजें क्लियर होगी। कट सेक्शन देखो तो कुछ अलग दिखता है, डॉर्सल से उसको हटा के देखो तो कुछ अलग दिखता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज फॉर्निक्स। ये क्या है? फॉर्निक्स स्ट्रक्चर। तो आपको तो एक ही पोर्शन दिख रहा है, इसके लेफ्ट वाला भी एक होगा। तो दिस पोर्शन में बी द बॉडी, क्योंकि अभी हम तो बता नहीं सकते, बट हियर मे बी द बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स। पीछे क्या होगा? यहाँ पे जहाँ पे हिप्पोकैम्पस आएगा, तो दीज आर दी कॉर्नुआ ऑफ द और कॉर्नू ऑफ द फॉर्निक्स। ठीक है, आगे जाके यहाँ पे मेमिलरी बॉडी बनेगी। लिखा है क्या? मेमिलरी बॉडी नहीं लिखा। ठीक है, तो दिस एरिया फॉर्म्स द मेमिलरी बॉडी, और उसके बाद जाके थैलेमस से फाइबर्स कनेक्ट हो जाएंगे। इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बहुत एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। आपको इसको रटना पड़ेगा कि फॉर्निक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कॉर्पस कैलोसम हैज different parts, similarly fornix is the made up of fibers which are oriented longitudinally. It connects the
हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्पस कैलोसम टू द थैलेमस, ठीक है, बिफोर एंटरिंग दिस वेट. This fornix, because it is made up of white fibers, it forms the mammillary body. So mammillary body is also known as, anybody can answer another name for mammillary body? किसी को पता है? Corpora albicans. हाँ, corpus albicans, ठीक है. albicans means albinism, albino क्या होता है? something related with the albinism बोलते हैं अपन, albino बोलते हैं, क्या मतलब इसका? what is the meaning? Colorless kind of thing. literal meaning is white, ठीक, colorless और white, ठीक है. तो जहां भी अपन white matter की बात करते हैं means fibers, ठीक है. तो this mammillary body is made up of white fibers, ठीक है, means axons. तो कहां से आ रहा है mammillary body का जो fibers कहां से आ रहे हैं? that these fibers they come from the fornix, ठीक है. fornix से आने के बाद ये enlarge और white बन जाएंगे and that forms a mammillary body and that becomes a part of the mammillary body and ultimately fornix का end कहाँ होगा? thalamus में, ठीक है. white mammillary body के बाद ये fibers कहाँ जाएंगे? and at the level of or at the this thalamus. clear हुआ fornix के parts? clear है? Yes, ma'am. ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स कल याद करके आना, मैं पूछूंगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉर्निक्स कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम हिप्पोकैम्पस कह लो या कॉर्पस कैलोसम टू द थैलेमस. थैलेमस, ठीक है. तो ये इसका पूरा ट्रैक जो फाइबरस ट्रैक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉर्निक्स आपको बता दिए, कॉर्नो होंगे, देन कमीशन होगा, देन body of the fornix and lastly columns of the fornix that end at the level of this white large structure that is mammillary body and ultimately these fibers and at the level of or at the thalamus, ठीक है. इतना क्लियर होगा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं. एक कॉर्पस कैलोसम आपको क्लियर हो गया, लैटरल वेंट्रिकल्स क्लियर हो गए, पूरी बाउंड्रीज क्लियर है, देन फॉर्निक्स क्लियर हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन द दिस cerebral hemisphere that is known as corpus striatum, although not visible from the outside, maybe from dorsal side, maybe from medial side or ventral side. These structures are not clearly visible, ठीक है. corpus striatum. What is the literal meaning of corpus? corpus का मतलब क्या होगा बेटा? बॉडी. बॉडी, गुड, ठीक है. corpus और corpora का मतलब हो जाएगा बॉडी, ठीक है. कॉर्पस स्ट्राइटम, स्ट्राइटम मीन्स समथिंग स्ट्रेट, हाँ, विच इज हैविंग स्ट्राइप्स और स्ट्राइशंस. जैसे जेब्रा में आपने स्ट्राइप्स देखी है, ठीक है. स्ट्राइटेड मसल देखी है, मीन्स स्ट्राइप्स आर देयर, स्ट्राइशंस आर देयर, ठीक है. तो देयर इज लिटिल मीनिंग मीन्स कॉर्पस मीन्स बॉडी, स्ट्राइशंस मीन्स बॉडी विच इज हैविंग स्ट्राइशंस, ठीक है. तो ब्रेन में स्ट्राइशंस कैसे आने चाहिए? ब्रेन में दो ही स्ट्रक्चर है, दो ही मैटर है. कौन कौन से? ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर. अगर हम ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बाजू बाजू में लगाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? एक ग्रे एक व्हाइट स्ट्राइप्स दिखाई देंगे ना, ठीक है. ग्रे मैटर व्हाइट मैटर. तो दस the name has been given this structure, different nuclei are there, ठीक है. तो that is known as कॉर्पस स्ट्राइटम. ये सब मैं आपको अभी थ्योरेटिकल बता रही हूँ क्योंकि आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है इसमें. तो व्हाट इज कॉर्पस स्ट्राइटम, ठीक है. तो कॉर्पस स्ट्राइटम एक्चुअली मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियाई, ठीक है. दीज टू न्यूक्लियाई आर, वन इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, अनदर इज लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है. वन इज कॉर्डेट न्यूक्लियस विच इज मीडियली प्लेस्ड और लेटरल टू दिस देयर इज अ लेंटिकुलर न्यूक्लियस. थ्योरेटिकली आपको भी पता है, ठीक है. तो कॉर्पस दिस कॉर्पस स्ट्राइटम में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? दो न्यूक्लियाई होंगे एंड टू कैप्सूल्स आर देयर, ठीक है. बिफोर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉर्पस स्ट्राइटम टेक्स प्लेस, ठीक है. कॉर्पस स्ट्राइटम एक्चुअली बनता कैसे है और क्यों है? मेनली वो तो मोटार एक्टिविटी को करने के लिए है, ठीक है. आपको बता दूंगी कि पहले जब
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन फ्रॉम न्यूरल ट्यूब। फिर से अपन बैक जाए, this is the neural tube, 3 vesicles are there, here are the 5 vesicles, ठीक है। the wall of this neural tube is made up of cells, ठीक है। these cells actually they are arranged in 2 layers, actually 3 होगी पर 2 में। inner one is known as this mantle layer, outer is known as marginal layer, ठीक है। उसका भी डायग्राम है अपने पास, नीचे का आप छोड़ दो, अभी स्पाइनल कॉर्ड का है। हियर द अपर डायग्राम जस्ट सी, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। जब ब्रेन बनने वाला है उसका अपन अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे या न्यूरल ट्यूब का ही पूरा क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यू कैन सी हियर दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ये क्या है? ल्यूमेन और कैविटी ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ठीक है। आप इसमें अगर हिस्टोलॉजिकली सेल्स के बारे में देखेंगे तो आउटर दिस लेयर इज नोन एज मार्जिनल लेयर, जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है दिस इज द मार्जिनल लेयर, ठीक है। येलो कलर्ड इज मेंटल लेयर और एंड ब्लू कलर्ड दिस इज एपेंडाइमल लेयर। एपेंडाइमल लेयर ऑल ऑफ यू नो, ऑल द वेंट्रिकल्स और पैसेज फॉर सीएसएफ जो भी होगा दैट इज लाइन बाय द एपेंडाइमा। इवन दिस स्पाइनल कैनाल, जो कैनाल प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज आल्सो लाइन बाय द एपिथेलियम एंड दैट एपिथेलियम इज नोन एज एपेंडाइमा, ठीक है। तो एपेंडाइमा को तो अपन अभी छोड़ दो क्योंकि लाइनिंग कर रही है। 2 लेयर्स आर देयर, ठीक है। जब न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही थी, दिस इज द मेंटल लेयर, आउटर वन इज द मार्जिनल लेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज न्यूरॉन्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, न्यूरॉन का डिवीजन नहीं होता है बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट दिस न्यूरोब्लास्ट सेल्स दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड। माइटोटिक डिवीजन होंगे तो इस येलो कलर एरिया में क्या होगा? न्यूरोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। बिकॉज डेवलपमेंट होना है, ग्रोथ होना है, तो एक सेल से तो चलेगा नहीं, उनको डिवीजन चाहिए, तो न्यूरोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। एंड दीज सेल्स व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब टेक्स प्लेस, दीज सेल्स गो ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, एंड गिव राइज टू अदर न्यूरोब्लास्ट सेल्स। तो साइटोन और सेल बॉडी कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो न्यूरल ट्यूब में साइटोन कहाँ होगा? इनसाइड होगा, ठीक है। एंड द फाइबर्स, क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन्स में या न्यूरोब्लास्ट सेल्स होंगे उनके कुछ फाइबर्स भी होंगे, तो दीज द फाइबर्स कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स द आउटसाइड। सेल बॉडी इज प्रेजेंट इन द येलो एरिया एंड देयर फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स एक्सटेंड कहाँ करेंगे? इन द आउटर एरिया एंड दिस लेयर इज नोन एज मार्जिनल लेयर। अभी इतना क्लियर हो गया? व्हाट इज मेंटल लेयर? मेंटल लेयर इज मेड अप ऑफ cell bodies of the cell bodies of the neuroblast cells, ठीक है। एंड आउटर लेयर क्या बन जाएगी? इसमें सेल बॉडी नहीं होगी, ओनली फाइबर्स आर देयर एंड दिस लेयर इज नोन एज क्या होगी? एनीबॉडी? मार्जिनल लेयर। मार्जिन। अभी क्लियर है? मार्जिनल लेयर में देयर इज सेल बॉडी और प्रेजेंट और नॉट? नॉट, ठीक है। ओनली फाइबर्स आर देयर, एक्सॉन होंगे, ठीक है, उसके अंदर, पर सेल बॉडी नहीं होगी। बट इन द दिस मेंटल लेयर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ द सेल बॉडी, ओके। साइटोन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ये मैं क्यों बता रही हूं? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, सेल डिवीजन होता जा रहा है एंड बाहर की तरफ इनके फाइबर्स अकेले मतलब एक्सॉन होंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है इन the cranial portion कह लो या the part of the neural tube which is going to form the brain, ये तो स्पाइनल कॉर्ड वाला नीचे वाला एरिया स्पाइनल कॉर्ड है, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। तो the portion of the neural tube which is going to form the brain, ठीक है, these cells, ये जो cells of the this mental layer है, ये cells क्या करती है? बाहर भागना शुरू कर देती है, ठीक है। they move towards the outside, particularly in cerebrum and cerebellum, particularly बाकी जगह में इतना डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं होता है, बट सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में क्या होगा? these सेल बॉडी कहना चाहिए, ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग आउटसाइड, बाहर की तरफ मूव करते हैं, उनके एक्सॉन पीछे रह जाते हैं। इज इट क्लियर? पूरी की पूरी मैक्सिमम सेल्स क्या करेंगी? दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड टू फॉर्म द
कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। तो इसलिए ब्रेन में क्या होगा, आउटसाइड ग्रे मैटर इज प्रेजेंट। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ आप लोग को? मैम कौन सी लेयर मूव करेगी? जो मेंटल लेयर में जो सेल्स होती है, लेयर नहीं मूव करेगी, शायद मैंने बोल दिया गलत। जो मेंटल लेयर में जो सेल्स होती है, ठीक है, सेल बॉडी, दे स्टार्ट मूविंग। यहाँ पे जो एक इसका डायग्राम और दिखा देती हूँ आपको। दिस इज द अनदर डायग्राम, ठीक है। ये ड्यूरल ट्यूब का पार्ट है विच इज गोइंग टू गिव राइज द ब्रेन, ठीक है। आप उसमें देखोगे ये हिस्टोलॉजिकल पोर्शन दिख रहा है इसमें, ठीक है। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स को भी आप छोड़ दो, ये वाला एपेंडाइमा जो बनना है वो बाद में देखेंगे। यहाँ 2 लेयर देखो, ठीक है। इसमें न्यूरोब्लास्ट सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स में आपको इसलिए नहीं बता रही कि कंफ्यूजन होगा, उसको मैंने अभी छोड़ दिया था। ओनली सी द न्यूरोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। न्यूरोब्लास्ट सेल्स गो ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, टू गिव राइज टू द, और इन द मेंटल लेयर, ये मेंटल लेयर है, ठीक है, यहाँ भी लिखा भी हुआ है। अब मार्जिनल लेयर में क्या हो जाएगा, इनके फाइबर्स दिख रहे क्लियर, ये एक्सॉन। शुरू में न्यूरल ट्यूब में ऐसा होता है, बट जब ब्रेन फॉर्मेशन होगा तो दीज सेल्स दे माइग्रेट आउटसाइड टू गेन द पोजीशन आउटसाइड, एंड रिवर्स हो जाएगा, एक्सॉन अंदर की तरफ चले जाएंगे, एंड जो सेल्स होंगी, सेल बॉडी, दे रीच टुवर्ड्स द पेरिफेरी टू फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन, पर्टिकुलरली इन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। इतना क्लियर हुआ? अभी नहीं हुआ? हो गया मैम। ठीक है। अब क्या होता है, मैक्सिमम सेल बॉडी बाहर आ गई, इस लेयर में आ गई, ब्रेन में, ठीक है, बट सम रिमेन्स इनसाइड। कुछ क्या रह जाएगी, यहीं रह जाएगी, न्यूरोब्लास्ट सेल्स कह सकते हैं अपन, ठीक है, अंदर रह गए, और दे फॉर्म देयर एग्रीगेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, जिसको अपन गैंग्लिया कह लो या न्यूक्लियस, ठीक है। तो बाकी तो माइग्रेट कर गए, कुछ यहाँ पे रह गए, एक ग्रे मैटर का पोर्शन यहाँ मान लो, दूसरा ग्रे मैटर का यहाँ, बट जो बाहर गए उनके फाइबर्स यहाँ पे, ठीक है, मान लो ऑल्टरनेट गए, ये सेल्स बाहर चली गई, ठीक है, ये सेल्स नहीं गई, फिर ये सेल्स बाहर चली गई, तो क्या हो जाएगा, ये सेल तो यहाँ पे ग्रे मैटर, बट दिस सेल्स इट मूव्स टुवर्ड्स द आउटसाइड, तो आउटसाइड मूव करने से यहाँ व्हाइट मैटर रह गया, ठीक है, और ये अंदर ग्रे मैटर रह गया। इस तरीके से इनका एग्रीगेशन ग्रे मैटर का हुआ और डिवाइड करती जाएगी, तो सेल बॉडी रिमेन्स हियर। फिर उसके बाद यहाँ इसके बाजू वाली सेल्स दे मूव आउटसाइड लीविंग द एक्सॉन हियर, तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, देन व्हाइट मैटर। इज इट क्लियर? गिविंग द अपीयरेंस दैट इज कॉर्पस स्ट्राटम, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, व्हाई दैट द स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस स्ट्राटम, because of the alternate arrangement of the gray matter, white matter, gray matter and white matter, ठीक है। कुछ थोड़ा समझ में आया इसके बारे में, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है कॉर्पस स्ट्राटम का? नहीं आया? यस मैम आया। Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि सीधे कॉर्पस स्ट्राटम पढ़ाते तो कुछ क्लियर नहीं होता, तो पहले मैंने बता दिया, ड्यूरिंग डेवलपमेंट द सेल्स दे मूव आउटसाइड, मैक्सिमम सेल्स, बट सम रिमेन इनसाइड, they go on dividing to form a nidus or to form this nucleus, ठीक है। तो वो ग्रे मैटर का न्यूक्लियस अंदर की तरफ रह जाएगा बिटवीन द व्हाइट मैटर, ठीक है, thus giving the striated appearance। अब मैं आपको कॉर्पस स्ट्राटम का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। There is another diagram which is showing this maximum cells they move outside, some remain inside। दिख रहा है ये मूवमेंट आपको दिख रही है क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, एक डायग्राम ये भी मिल रहा है, मूवमेंट ऑफ द सेल्स टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है। वेंट्रिकुलर सरफेस यहाँ पाया मैटर आएगा, इसलिए लिखा है पायल सरफेस, ओके। दिस इज अनदर डायग्राम शोइंग द मूवमेंट ऑफ द सेल बॉडी टुवर्ड्स द आउटसाइड। Actually, I am not having the diagram of this
corpus stratum. Just wait, beta. Just wait for a minute, okay? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am.